Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will start with plant cell and animal cell. सबसे पहले हम plant cell और animal cell का difference देख लेते हैं. दोनों में difference क्या होता है. Plant cell में cell wall present होती है जो cellulose, hemicellulose और pectin की बनी होती है और animal cell में cell wall absent होती है. In plant cell, nucleus lies on one side of the cell, while in animal cell, nucleus lies in the center of the cell. Plastids present होते हैं plant cell में, animal cells में absent होते हैं. In plant cell, there is a single large central vacuole, while in animal cell, many small vacuoles are present. Plant cell में mitochondria बहुत ही कम नंबर में होते हैं और animal cell में large नंबर में present होते हैं. Centrosomes and centrioles both are absent in plant cell, while centrosomes and centrioles are present in animal cell. Lysosomes बहुत ही rare पाए जाते हैं plant cell के अंदर, while animal cells have lysosomes. So हमने देखा plant cell में सबसे outermost layer cell wall होती है और उसके अंदर plasma membrane होती है और animal cell में outermost layer plasma membrane होती है. In both plant and animal cell, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ एक फ्लूइड कंटेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है. सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. अब हम इन सेल ऑर्गेनल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है. सो द फर्स्ट इज endoplasmic reticulum, which is a network of membrane-bound tubes and sheets. The membrane of endoplasmic reticulum is similar in structure to the plasma membrane. Endoplasmic reticulum दो प्रकार का होता है, rough endoplasmic reticulum RER and smooth endoplasmic reticulum SER. This is the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So, rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to its membrane, while smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes on its membrane. RER is formed of cisternae and a few tubules, while SER is formed of vesicles and tubules. RER का function है to synthesize proteins and enzymes, and SER का function है to synthesize fat and lipids. This diagram shows rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. RER is present in continuous to the nuclear envelope, which is the membrane of nucleus. Rough endoplasmic reticulum को rough इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी membrane पर ribosomes attached रहते हैं जो इसे एक rough appearance provide करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं. फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इट आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क providing a surface for some of the biological activities of the cell. Smooth endoplasmic reticulum helps in detoxifying poison and drugs. Next is Golgi apparatus. It was first described by Camillo Golgi and it consists of a system of membrane-bound vesicles that are arranged approximately parallel to each other in a stack called as cisterns. Its functions include transport, storage, modification, and packaging of product in vesicles. It is also involved in the formation of lysosomes, and it is also involved in the synthesis of complex sugars from simple sugars. Next is lysosomes. Lysosomes एक टाइप का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, क्योंकि सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो भी हमारे डेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सब का डाइजेशन करता है लाइसोसोम्स और सेल को क्लीन रखता है. लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दैट आर synthesized by endoplasmic reticulum. Lysosomes are known as suicide bag of a cell because
जब सेल डैमेज होगा तो ये लाइसोसोम्स बस्ट कर जाएंगे और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे एंड दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है टू फॉर्म क्रिस्टे दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज ये एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनको काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं और ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। This is the structure of mitochondria. Mitochondria has two membrane, outer and inner membrane. The space between these two membrane is intermembrane space. Inside the inner membrane matrix is there and matrix contain mitochondrial DNA, ribosomes, granules and ATP synthase. Electron transport chain is located in the inner mitochondrial membrane and that is responsible for the synthesis of ATP. Next one is plastids. Plastids plant cells में present होते हैं। दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर्ड प्लास्टिड हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और कलरलेस प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं स्टार्च को, ऑयल्स को और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम्स हैं, सिमिलरली प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। सो वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट are the cell organelles that contain their own genetic material, that means DNA. This is the structure of chloroplast. Chloroplast एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल होती है और इनर मेम्ब्रेन कम परमेबल होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक नेटवर्क होता है फ्लैटेंड डिस्क का। थैलेकॉइड के अंदर का जो स्पेस है उसे थैलेकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स is called grana and these grana are connected to one another through stroma lamella. Now coming to vacuoles. Vacuoles are storage sac for solid or liquid contents. It means जो भी solid और liquid content होता है वो vacuoles में store होता है। इसके अलावा vacuoles के अंदर कुछ important substances like amino acid, sugars, various organic acids और कुछ proteins भी store होते हैं। प्लांट सेल्स में लार्ज साइज वैक्यूल्स पाई जाती हैं और एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इन सम प्लांट सेल्स द सेंट्रल वैक्यूल में ऑक्यूपाई 50 to 90% of the cell volume and some unicellular organisms has specialized vacuoles that help in removing excess water and waste from the cell. So we can say that cell has a basic structural organization. This helps the cells to perform functions like respiration, obtaining nutrition, and clearing of the waste material or forming new proteins. And hence, cell is the fundamental structural unit of living organisms. Cell is also the basic functional unit of life. The last topic of this chapter is cell division. The process by which new cells are made is called cell division. There are two types of cell division, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब समझते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन माइटोसिस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इट मीन्स मदर सेल डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स बनेंगे जो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे।
मियोसिस में 2 डिविजन्स होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने मदर सेल में होते हैं, और मियोसिस में जितने क्रोमोसोम मदर सेल में हैं उसके आधे डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मदर सेल है जिसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं। अगर उसमें माइटोसिस होगा और जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी 20 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जब मियोसिस से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर 10 क्रोमोसोम्स होंगे। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है डॉटर सेल्स में भी और मदर सेल में भी। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में। माइटोसिस helps in growth and repair of tissues in organisms, while meiosis helps in formation of gametes. I hope all the topics of this chapter are clear to you. If you like the video, then share with your friends and subscribe the channel.